lesson, that is Madam Rides the Bus, written by Valika Nun. In this sensitive story, an 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. So in this story, the girl for the first time goes on a ride on the bus, and what was her experience, we will see in this video. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So she comes to know the reality of life when she enters and sat for the first time in the bus and took a ride. So let us see what is in the story, children. There was a girl named Valia who was called Vali for short. So her full name is Valia. She was 8-year-old and very curious about things. उसको जिज्ञासा थी हर चीज़ को जानने की. Her favorite pastime was standing in the front door of her house. वो सारा दिन अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती, watching what was happening in the street outside. और गली में क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो बैठी रहती थी. There were no playmates. She had no friends of her own age on her street, and this was about all she had to do. So her only pastime was to sit on the doorway and look outside in the street. But for Wali, standing on the front door was very bit as enjoyable. और उसके लिए बाहर खड़े होना ना केवल मज़ा देता था, as any of the elaborate games other children played. So she used to enjoy it. It was just like a game for her. Watching the street gave her many new unusual experience. गली में देखना उसे नए नए अनुभव देता था, and she used to see new things from the doorway. As you can see, very well see in this picture also, how she is standing and looking outside. The most fascinating and attractive thing of all was the bus. सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ से एक बस जाती थी, that traveled between her village and the nearest town. तो वहाँ उसके गांव से शहर जाती थी. It passed through a street. उसी गली से जाती थी each hour, हर घंटे. After every 1 hour, one bus used to go. Once going to the town and once, एक बार बस जाती है और एक बार शहर से आती. The sight of the bus, उस बस को देखना, filled each time with a new set of passenger. उसमें नए नए यात्रियों को देखना was a source of unending joy for वाली. ये कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी वाली को देता था, बस का आना जाना और उसमें नए नए लोगों को देखना. This was a very good pastime of वाली. Day after day she watched the bus. रोज़ वो बस को देखती. Gradually a tiny wish crept into her mind. अचानक उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागी and grew there. She wanted to ride on that bus. I will also go in this bus, even if just once. Only I will go for once. This wish became stronger and stronger. ये उसकी इच्छा तीव्र होती गई until it was an overwhelming desire. Now it was, she could not control her desire. Wally would stare wistfully, very lovingly, longingly, with the desire at the people who got on or off the bus. उन लोगों को बहुत ललचाई नज़रों से देखती जो लोग बस से उतरते और बस में चढ़ते थे. When it stopped at the street corner, तो गली के कोने पे बस रुकती तो कोई उसमें उतरता कोई चढ़ता. So this was very longingly thing for Wali. She used to desire this. The desire became strong in her to move in the bus. Their faces would kindle in her longings, dreams and hope. उन यात्रियों के चेहरे उसे सपनों में, उसकी इच्छाओं में और आशाओं में दिखाई देने लगे. If one of her friends happened to ride the bus, तो उसका कोई दोस्त बस में जाता and tried to describe the sights of the town to her, और वहाँ से देखे गए दृश्य के बारे में उसको बताता, Wally would be too jealous. वाली जल जाती थी to listen and would shout, और बहुत ज़ोर से चिल्लाती in English, proud, गर्व, गर्व. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. वो कभी भी इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाए. But they used it often as a slang expression of disapproval. पर वो हमेशा इसे विद इन अ क्लोज ग्रुप में वो इसको उसकी डिसअप्रूवल के रूप में इस एक्सप्रेशन को लेते थे कि लगता है इसे हमारा उसमें जाना पसंद नहीं, इसलिए ऐसा कह रही है. Over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. For many days she listened to the conversation between her neighbors and the people who went on the bus. उनकी बातें वो सुनती, continuously सुनती रही. This way she picked up various small details about the bus journey. So she collected the details of how to move in the bus and how was it if she travelled in the bus. The town was 6 miles from her village. शहर उसके घर से 6 मील दूर. The fare was 30 पैसा one way. एक तरफ 30 पैसे लगते थे, which is almost nothing at all. जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. She heard one well-dressed man say, एक अच्छे से तैयार आदमी ने कहा, but to Wali,
who scarcely saw that much money for 1 month to the next. It seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. शहर जाने में 45 मिनट लगते. On reaching town, she stayed in her seat. She sat in the on reaching. जब शहर पहुंची तो वो सीट पे बैठी रही and paid another 30 पैसा और उसने 30 पैसे दोबारा दिए. She could return home on the same bus ताकि वो उस बस से वापस भी आ सके. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus. She was thinking कि how she will move in the bus. उसका मतलब ये था कि वो 1 बजे की बस लेगी दोपहर को, reach the town at 1:45 and be back at 2:45. तो वो 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगाएगी and that will be on. On and on went her thoughts. एक से विचार उसके दिमाग में चलते रहे. As she calculated and recalculated, she calculated the money, then again calculated, then planned and then replanned. But how she will move, how she will go, all the planning was going in her mind. So the questions of this lesson is, what was Wali's favorite pastime? What was the source of unending joy for Wali? What was her stronger desire? What did Wali find out about the bus journey? How did she find out these details? उसको बस की सारी जानकारी कैसे मिली कि कैसे जाती है, कितने बजे चलती है, कितनी देर लगती है. What do you think Wali was planning to do? Second part. Well, one spring day, एक दिन बसंत के मौसम में, in the afternoon, bus was just on the point of leaving the village. वहाँ से बस निकलने ही वाली थी and turning into the main highway, और मेन हाईवे पे जाने ही वाली थी. When a small voice was heard shouting. अचानक एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, stop the bus, stop the bus. And a tiny hand was raised commandingly. और बहुत कमांड देते हुए एक हाथ ऊपर उठा और बस को रोकने लगा. The bus slowed down to a crawl. बस रेंगते खड़ी हो गई, धीरे हुई. And the conductor sticking his head out of the door. The conductor took out his head from the door and said, hurry, जल्दी करो. Tell whoever it is to come quickly. जिसे आना जल्दी आइए. It's me, Wali shouted. I am the one who has to go to get on. मुझे उसमें चढ़ना है. And the bus had come to a stop. तो बस रुक चुकी थी. And the conductor said, oh really, you don't say so. तुम तो ऐसा नहीं कह रही हो. Yes, I simply have to go to town. I want to go to town, said Wali, standing outside the bus. बस के बाहर खड़े बोली, मुझे शहर जाना है. And here's my money. और उसने उसको सिक्के दिखाए कि ये मेरे पैसे हैं. Okay, but first you get inside the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her. और उसने उसको हाथ दिया ताकि वो ऊपर चढ़ सके. Never mind, she said. She did not want to take her hand. I can get on by myself. You don't have to help me. मैं अपने आप जा सकती हूँ. You don't need to give me any help. The conductor was a jolly sort. He was a very funny and happy going person. Fond of joking. उसे मजाक करने की आदत थी. Oh, please don't be angry with me. मुझसे नाराज़ मत हो. My fine madam. अरे मेरी मैडम, मुझसे गुस्सा मत हो. He said. Here have a seat right up there in front. Go and sit in the front. Everybody move aside, please. अब सब लोग पीछे हो जाओ. Make way for madam. मैडम के लिए रास्ता दो. It was a slack time of day. Slack means when there is no. It was a time of the day when there was not much work being done and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wali. वो सब वाली को देख रहे थे and laughing with the conductor. और कंडक्टर की बातों पर हंस रहे. Wali was overcome with shyness. वाली को थोड़ी शर्म आई. Avoiding everyone's eyes, सबसे अपनी आँख बचाते she walked quickly to an empty seat and sat down. खाली सीट देख के वहाँ बैठ गई जल्दी से. May we start now, madam? Conductor asked. ना मैडम शुरू करें गाड़ी. Then he blew his whistle twice and the bus moved from. और एक जोर की आवाज़ करती हुई बस चल पड़ी. It was a new bus. Its outside painting a gleaming white with some green stripes along the sides. नई बस थी, बाहर से ग्रीन धारियों में पेंटेड थी. Inside the overhead bar shone like silver. अंदर उसके सिल्वर की तरह चमक रहा था. Directly in front of वाली के सामने बिल्कुल above the windshield, शीशे के पास there was a beautiful clock. वहाँ एक विंड हवा से बचने के लिए एक शील्ड लगी हुई थी खिड़की जैसी. उसके ऊपर एक घड़ी थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. सीट्स बहुत नरम और बड़ी आरामदायक थी. वाली डेव्यूड एवरीथिंग विद हर आइज. वैली ने सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा. शी लाइक्ड एवरीथिंग. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवस ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. और वो बाहर जब देखने लगी तो उसकी खिड़की के ऊपर एक कवर लगा हुआ था. शी स्टूड अप. सो बिकॉज ऑफ दैट कवर शी वॉज नॉट एबल टू सी आउटसाइड वेरी क्लियरली. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट. तो इसलिए वो सीट से खड़ी हुई. बिकॉज ड्यू टू दैट कैनवस ब्लाइंड, उसके शीशे के आगे कैनवस
का कवर लगा हुआ था एंड peered ओवर द ब्लाइंड, और वो जो कवर लगा था उसके ऊपर से वो देखने लगी। द बस वॉज नॉट गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कैनाल के किनारे से भी बस जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, बहुत संकरी रोड थी। इट वॉज नॉट वेरी ब्रॉड। ऑन वन साइड देर वॉज अ कैनाल, on one side there was canal and beyond it palm trees, grassland. The open field was filled with trees and grassland. Distant at the and at a distance there were mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch, और दूसरी तरफ गहरा गड्ढा था। and then acres and acres of, और मीलों दूर तक खुला मैदान जिसमें हरा हरा दिख रहा था। as far as the eye could see, because every tree was green. Oh, it was also wonderful. सब बहुत अच्छा नज़र। It was very good and attractive. Suddenly she was shocked by a voice. Listen, child, एक आवाज़ बोली, किसी की आवाज़ आई। सुनो बच्चे, you should not stand like that. Sit down. तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man, एक बड़ी उम्र का आदमी, who had honestly been concerned for her, who was really very much concerned and wanted to take care of her, but she was annoyed by her attention. पर वो उसकी attention से परेशान हो गई और गुस्सा हुई। There is nobody here who is a child, she said haughtily. बहुत घमंड से बोली, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। I have paid my 30 पैसा like everyone. सबकी तरह मैंने भी किराया दिया है। I have paid 30 पैसा। The conductor chimed in. कंडक्टर थोड़ा सा मुस्कुराया। ओ सर, और दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे ये तो मैडम, आप सर आप गलत हैं, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर? क्या तुम सोचो ये लड़की अपना किराया देगी एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? अगर वो बड़ी नहीं होती तो अकेली किराया दे के शहर थोड़ी जा रही होती। वाली शॉट एंड एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। वाली ने गुस्से की नज़रों से कंडक्टर की तरफ देखा एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट, प्लीज़ गिव। आई विल रिमेंबर मुझे याद है, कंडक्टर सेड, मिमिकी मतलब कॉपिंग हर टोन, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए बोला। एवरीवन लाफ, हर कोई हंसा एंड ग्रेजुअली वाली टू जॉइन इन द लाफ, और वाली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अप टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया एंड हैंडेड टू हर एंड गेव टू हर। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, चलो बैठ जाओ और अपने आप को आराम से कर लो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? अब तुमने पैसे दिए तो सीट पे बैठो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, उसने कहा मेरा मन है। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। पर अगर बस ने जोर से टर्न लिया और या किसी चीज़ से टकराई, बम्पर से, द बम्पर मीन्स व्हेन द रोड इज़ रेज्ड एट वन पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड बम्प। अगर वो बम्पर पे उछली, बम्प पे, यू मे फॉल। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बार बोलूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, चिढ़ती हुई बोली, आई एम 8 year old। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। 8 years, माय ओ कितनी उम्र है। The bus stopped. Some new passengers came in, and the conductor got busy for a time. And conductor was busy giving the tickets. Afraid of losing her seat, अपनी सीट के जाने के डर से, वाली finally sat down. An elderly woman came, एक औरत आई, and sat उसके पास में बैठ गई. Are you all alone, dear? क्या तुम अकेली हो? She asked Wali as the bus started again. Wali found the woman absolutely repulsive. Wali found the woman absolutely repulsive means Wali had a strong disliking for that lady. Wali did not like the lady. She disliked the lady at the first glance. Such big holes, उसके कानों में बड़े बड़े छेद, and such ugly earrings, गंदे से कान के पहने हुए, and she could smell the betel nut the woman was chewing, और पान खाते हुए, पान की स्मेल उसके मुंह से आ रही चबाते हुए, and see the betel juice, और वो उसके होंठों से पान का रस नीचे गिरने को तैयार। She did not like the look of the lady. Who could be sociable with such a person? Who could be so friendly with such a, ऐसे आदमी के साथ कौन फ्रेंडली होगा? Yes, I am travelling alone, she answered curtly. She showing her displeasure, अपनी नाराज़गी दिखाती हुई बोली, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, बट आई हैव गॉट अ टिकट। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन। कंडक्टर ने कहा कि शहर जा रही है विद ए 30 पैसा टिकट, 30 पैसे का टिकट लेके। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, वाली ने कहा। बट शी लाउड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाउड टू, वो भी हंसी और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद अ ड्रिवन, बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद अ सिली नॉनसेंस टॉक। इज इट प्रॉपर फॉर अ यंग पर्सन टू ट्रैवल लोन?
तो इस तरह के जवान बच्चों को अकेले घूमना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता तुम शहर में कहाँ जा रही हो? मैनी क्वेश्चन फॉर आस्क्ड बाय द लेडी। व्हाट इज़ द स्ट्रीट? गली क्या होती है? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? किस गली में जाना है? क्या घर का नंबर है? डू यू नो एनीथिंग? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, वाली सेड। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, ऐसा कहकर वो खिड़की की तरफ मुड़ी एंड स्टार्टेड लुकिंग वेरी केयरफुली आउटसाइड। So these are the questions. Why does the conductor call Wali madam? Why does Wali stand up on the seat? What does she see now? What does Wali tell the elderly man when he calls her a child? Why did not Wali want to make friends with the elderly woman? क्यों उस बूढ़ी औरत से दोस्ती नहीं करना चाहती? Part 3. Her first journey, पहली यात्रा. What careful, painstaking, बहुत ज़्यादा थकान भरी. Elaborate plans, बहुत बड़े बड़े प्लान. She had made for it, उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, बहुत प्लानिंग की थी इस ट्रैवलिंग के लिए. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, स्पेंड मनी केयरफुली. शी सेव्ड मनी वेरी केयरफुली. वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी पैसे उसे मिले, शी ट्राई टू स्पेंड मनी वेरी केयरफुली. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट. रास्ते में जहाँ कहीं भी गाड़ी रुकती तो अपने पैसों को बहुत ध्यान से खर्च रही थी. शी स्टॉप्ड हर टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक एंड मैनी मोर थिंग्स. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा. अपने हर चीज़ को में कटौती करके बचा के पैसे खर्च के शी कुड सेव 60 पैसा. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है. पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, जब गाँव में मेला लगा. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सेव द मनी, बट शी हैड resolutely stifled a strong desire, but she had suppressed and controlled her determination that to ride the merry-go-round. उसने कहा मैं तो बस बस में ही जाऊंगी. So she suppressed her and controlled her determination, even though she had the money. उसके पास पैसे भी थे जबकि. She had resolutely stifled a strong, उसने अपनी उस तीव्र इच्छा को दबा लिया जो मेले में गोल चक्र गोल घूमता है वो पहिया, उस पर बैठने की उसने अपनी इच्छा को भी दबाया जबकि उसके पास पैसे भी थे. बट स्टिल शी सप्रेस्ड हर एंड कंट्रोल्ड हर सेल्फ विद डिटर्मिनेशन दैट शी विल नॉट गो ऑन दैट मैरी गो राउंड. वो उस उड़न खटोले में नहीं जाएगी. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, जब बहुत पैसे बचा लिए. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस. अब उसको यह था मैं घर से बाहर कैसे जाऊँ विदाउट माई मदर नोइंग अबाउट इट. But she managed this without too much difficulty. But with difficulty she could manage. Every day after lunch her mother would nap about 1 to 4 or so. हर दिन उसकी माँ खाने के बाद 1 से 4 तक सोती थी. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway. वाली अब से पहले अपने सारे घंटे बाहर देखने में बिताती थी घर से जब उसकी माँ सोती थी. और sometimes even ventured out into the village. और कभी कभी वो बहुत भागने से बाहर भी चली जाती थी. Today these same hours could be used. आज वो इन सब today she will use these sleeping hours of her mother for her first excursion outside the village. For the first time when she was traveling outside the village, she will use this time in going in that bus. The bus rolled on. बस चली. Now cutting across a bare landscape. एक खुले से मैदान से आगे बढ़ी को क्रॉस किया. Now rushing through a tiny hamlet और past an odd way साइड शॉप और दुकानों से होती आगे को बढ़ी. समटाइम्स द बस सीम्ड एट द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल. कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ी जाएगी. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उसकी तरफ आ रही है. और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कोई यात्री जब रोड पार कर रहा था ऐसा लगता था बस उसके ऊपर से ही चली जाएगी. बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, पर किसी तरह से बस स्मूथली आगे बढ़ गई. लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए. सेफली द बस वॉज मूविंग फॉरवर्ड. Trees came running towards them. पेड़ ऐसा लगा था उनकी तरफ आ रहे हैं. But then stopped as the bus reached them. जैसे ही बस उनके पास पहुंचती वो वहीं खड़े हो जाते. It seemed to Wali that the trees were also moving along with the bus. And when the bus stopped, the movement of the trees stopped. And stood there, reached them, and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction. Suddenly Wali clapped her hand with glee. अचानक वाली ने खुशी में ताली बजाई. ग्ली मीन्स हैप्पीनेस. अ यंग काउ, एक बड़ी सी गाय, टेल हाई, अपनी पूँछ ऊपर करी हुई, भागती हुई आ रही थी तेज़ी से. इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच. राइट इन फ्रंट, और बिल्कुल बस के आगे आ गई. बस स्लो टू ए क्रॉस, बस धीरे से रेंगती हुई रुकी.
धीरे हुई एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली। ड्राइवर ने अपना हॉर्न जोर जोर से बजाया, बस धीरे करके। और द मोर ही हॉर्न, जितना ज़ोर से वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्रैटेंड द एनिमल बिकेम, उतना ही ज़्यादा गाय डर जाती। एंड द फास्टर, और वो और तेज तेज उछलने लगी। ऑलवेज राइट इन द, और बस के सामने ही बार बार उछल रही थी। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू, पाली के लिए सीन बड़ा मज़ेदार था। शी लाभ बहुत हंसी, जब तक उसकी आंखों से हंसते हंसते आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवेंट यू लाव्ड इनफ फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं हंस ली? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ हंसना बचा लो। शी टॉन्टेड एट वाली। एट लास्ट द काउ मूव्ड, आखिर में गाय रोड से अलग हो गई। एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, एंड सून द बस केम, रेलवे रोड के यहाँ से रेल रोड की क्रॉसिंग होती, वहाँ पर बस पहुँच गई। स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड भी सीन, थोड़ी दूरी पर ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। गोइंग बिगर एंड बिगर एज ए ड्रू नियर, इतनी पास आती जाती उतनी बड़ी होती दिख रही थी। यानी रश पास द क्रॉसिंग गेट, फिर वो उस क्रॉसिंग गेट से निकल गई। मेकिंग अ लाउड साउंड एंड इट शुक द बस ऑल्सो, उसके जाने की स्पीड से बस भी हिल गई। एंड द बस वेंट ऑन, फिर बस आगे बढ़ी। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन उसने पार कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रांसवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से वो बस एक बहुत व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग गली की तरफ मुड़ गई। एंटेड अ वाइडेड थॉरोफेयर, और एक बहुत बिजी पब्लिक रोड पर आ गई। थॉरोफेयर मीन्स बिजी पब्लिक रोड, वेयर मेनी पीपल वर मूविंग। द बस नाउ एंटेड इन दैट प्लेस वेयर देयर वॉज टू मच रश। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी चमकती हुई दुकानें। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ, चमकते हुए सुंदर कपड़े। एंड अदर मर्चेंडाइज एंड मैनी अदर थिंग्स फॉर सेल, और सेल के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। एंड देयर वर बिग क्राउड, और बहुत भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर, आश्चर्यचकित होते हुए वाली घूर घूर के सब चीज़ों को देख रही थी। एंड द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट आउट, बस रुकी और सब उसमें उतरे, वाली नहीं उतरी। हे लेडी, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट आउट, क्या तुम नीचे नहीं उतरना चाहती? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये जितने तुमने पैसे दिए हैं वहाँ तक तुम आ गई हो। नो, वाली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसमें मुझे वापस भी जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसा, उसने अपनी जेब से फिर 30 पैसे निकाले एंड गेव टू द कंडक्टर। वाई इज़ समथिंग द मैटर, क्या चीज़ गलत होगी मैडम? नो नथिंग, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मुझे तो बस में केवल एक राइड लेनी थी, दैट इज़ ऑल। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट, क्या तुम यहाँ की चीज़ों को नहीं देखना चाहती? नाउ दैट यू आर हेयर, क्योंकि तुम शहर आ गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, मैं सब, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, उस लड़की के बात करने के तरीके से खुश होते हुए द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। उसने कहा, मुझे ऑल बाय माई सेल्फ, मेरी मर्जी है, मुझे बाहर जाने में डर लगता है। तुम अकेली बस में आ गई तब तुम्हें डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट, उसमें क्या डरने की बात थी? शी आंसर्ड, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, कि तुम उस दुकान में क्यों नहीं जाती एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक एंड टेक सम ड्रिंक। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, यहाँ को डरने की ऐसी बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट इज़ ऑल। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरे लिए एक ट्रीट के बराबर होगा और तुम्हें कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। नहीं, इट विल बी माई ट्रीट, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ और तुम्हारा इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। कंडक्टर सेड, नो नो, उसने कहा नहीं, वेरी स्ट्रांगली एंड फर्मली शी सेड, प्लीज़ नो। शी रिफ्यूज्ड। द कंडक्टर स्ट्रक्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे ऊपर किए एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिकम द रिटर्न जर्नी, और फिर वो वेट करते रहे जब तक बस ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू नहीं की। अगेन देयर वर मेनी पैसेंजर, अब भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। पैराग्राफ पार्ट 4। नाउ वी विल डू पार्ट 4 चिल्ड्रन। वॉन्ट योर मदर भी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही हुई, कंडक्टर सेड व्हेन ही गिव द टिकट टू द गर्ल। नो नो, नो वन भी लुकिंग, मेरे को कोई नहीं देख रहा। द बस स्टार्टेड, बस चली एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और दोबारा से शी वॉज एबल टू सी ऑल दो साइट्स विच शी सॉ व्हेन शी केम टू द टाउन। वाली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वाली को बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग एंड वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट,
और हर चीज़ का मज़ा वो बिल्कुल वैसे ही लेती रही। एंड शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे उसने पहली बार लिया था। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक उसने एक मरी हुई गाय रोड के किनारे देखी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लगता था किसी गाड़ी से टकरा के मर गई थी। इज़न्ट दैट द सेम काउ? उसे लगा क्या वही गाय नहीं है उनके बस के आगे आगे भाग रही थी। व्हेन शी वॉज कमिंग टू द टाउन शी आस्क्ड द कंडक्टर। कंडक्टर से पूछा कि ये वही गाय है जो हमारी बस के आगे थी जब हम शहर जा रहे थे। द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने अपना सिर हिला दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर सेड yes and she was very sad to listen to this news. What had been a lovable beautiful creature just a while ago, एक सुंदर जीती जागती चीज़ प्यारी जो अभी तक जिंदा थी, had now suddenly lost its charm. अचानक उसका सारा सुंदरता जाती रही। एंड इट्स लाइफ एंड लुक सो हॉरेबल। और उसकी ज़िंदगी भी चली गई। एंड नाउ इट वॉज लुकिंग वेरी हॉरेबल। बहुत भयानक लग रही थी वही चीज़। सो फ्रैटनिंग एज इट ले देयर, लेग स्प्रेड ईगल, वो सो फ्रैटनिंग, कितना डराने वाला नज़ारा था जब वो वहाँ पड़ी हुई थी, टांगें दूर तक फैली हुई और फिक्स्ड है एक जगह पर रुकी हुई, उसकी लाइफलेस सी आँखें और चारों तरफ खून ही खून। सो इट वॉज़ अ वेरी फ्राइटनिंग साइट फॉर वाली टू सी। द बस मूव्ड ऑन। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। उस मरी हुई गाय की याद, उस मरी हुई गाय को वो भूल नहीं पा रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसका जोश भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। उसका खिड़की से बाहर देखने का मन भी नहीं था। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट। अब वो चिपक के अपनी सीट पे बैठी रही। अंटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40। 3:40 पे उसकी बस वापस गाँव पहुँची। वो उठी एंड स्ट्रेच द सेल्फ, और थोड़ा सा वो स्ट्रेच किया। दैन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हारा बस में बैठने का मन हो, कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। किराया लाना मत भूलना। शी लाउड, वो हंसी एंड जम्प डाउन, बस से कूदी। एंड व्हेन शी वेंट स्ट्रेट टू हर होम, और अपने घर चली गई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक। घर पहुंची तो माँ जाग चुकी थी एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंट्स। और वाली की एक बुआ से बात कर रही, तो वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। वाली की किसी आंटी से बात कर रही जो साउथ स्ट्रीट से आई थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। ये आंट उसकी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, मुँह बंद ही नहीं होता था। वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, बोलने लगती तो मुँह बंद नहीं करती। वेयर हैव यू बीन, आंट ने पूछा। व्हेन वाली केम इन, तुम कहाँ थी, वाली की आंटी ने पूछा। शी स्पोक वेरी नॉर्मली, शी सेड, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। सो वाली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर। और फिर बिना, वाली ने धीरे से कुछ कहा और फिर उसने जवाब के लिए, उसको पता था जवाब नहीं मिलेगा, और वो दोनों मदर और आंटी आपस में बात करने लगे। येस यू आर राइट हर मदर। मदर ने कहा तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सो मेनी थिंग्स आर मिथ्स आर इन द वर्ल्ड आउटसाइड। जो हमारे घर के बीच में, घरों में होता है, वो बाहर भी दुनिया में होता है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो, हमारे को सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चल सकता है। एंड इवन व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट, तो इसलिए हम उसको पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते। क्या समझ पाएंगे? ओ यस, ब्रेथ। वाली ने सांस लेते कहा, हाँ क्यों नहीं। वॉट आज, माँ ने कहा क्या। व्हाट्स दैट यू से, तुमने ये क्या कहा। वो सेड वाली, आई वॉज जस्ट एग्री विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वो जो तुम हमें को जो हमारे को जो बातें करी उनके बारे में जो बात करी थी ना, मैं तो बस उसके साथ सहमत होते हुए बोल रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमारी नॉलेज में ही नहीं है तो हमें क्या पता लगेगा। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी इज सेड हर आंट। तुम्हारी लड़की तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन। देखो ना हमारे बातों में अपनी अपनी टांग किस तरह से हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे वो बहुत बड़ी लेडी हो। वाली ने अपने आप में हंसी। शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड अ स्माइल। वो अपनी मुस्कुराहट को उनको समझने नहीं देना चाहती थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। पर उनके स्माइल को समझने का कोई चांस भी नहीं था। दिस वॉज द लेसन, मैडम राइड्स द बस। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑफ ए 8-year-old वाली, हाउ she desired to go on the bus. What did she see when she went into the bus? What was her experience while traveling the bus for the first time? So this story shows the confidence of the girl
the determination, strong determination of Vali, how strong, determined, and confident she was when she desired to go on a ride on the bus. She did all the planning and made her plan successful of going and riding on the bus from village to town. So this is your lesson, Madam Rides the Bus. So now you have to see the question answers and do the exercise.